let's start the first chapter of History of Class 6. So the chapter name is What, Where, How and When. So in history, whatever we study is basically the changes that takes place with time. Let's first take an example. If you want to know about what happened yesterday, definitely you will have a look at a newspaper, or you will watch a television, or listen to a radio. But what if you want to know about what happened last year? So in this case, you will ask somebody who remembers. But what if you want to know about what happened 100 years ago? Definitely, you don't have any idea about it. So in this chapter, we are going to deal with this only. So the first content is what. What can we know about the past? There are several things we want to know about the past. What people ate, what are the kind of clothes they wore, the houses in which they lived, the work they used to do, who are the hunters, farmers, herders, rulers, etc. etc. Okay? So the second content is where did people live? So ऐसा हमने पढ़ा है कि लोग पहले रिवर जहाँ पानी होता था उसके आसपास सेटल हुआ करते थे, बट हमने कभी सोचा है कि लोग वहाँ सेटल क्यों होते थे, क्या रीज़न होता था? सो द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस इज वाटर. Water. We know that no one can survive on this earth without water. So water is a basic need. So लोग पहले भी 1000 साल 100 साल पहले भी पानी उतना ही ज़रूरी था जितना कि आज है. So to fulfill their basic needs they need water. ऐसा तो नहीं था ना उस टाइम कि नल खोलो और पानी आ जाए. ओके सो ठीक है, पानी ज़रूरी था तो लोग करते क्या थे, वो काम क्या करते थे? सो बेसिकली द पीपल दे वर skilled gatherers. They used to gather their food around from the forest and other roots, fruits, any other material they used to collect from the forest for their food. Even they used to hunt. So question arises, why they used to hunt? So there could be two reasons for it. They could use the flesh of the animal to eat, and they can use the skin of the animal to wear. Okay. So first of all, when the people started settling down around, when they became modern, they started settling down around rivers. Okay, so the first agriculture, where did first agriculture took place? It took place in Sulaiman and Kirthar hills, which is in northwest, which you can see in the map. Okay, so in India, where did first agriculture took place? So it was in the Garo hills, which is in the northeast, and the Vindhyas which is in central India. First place where rice was first grown is north of the Vindhyas. So when people started settling down, they also started creating cities, and kingdoms also started flourishing. So the people started settling down around Indus and its tributaries. Okay, around 4700 years ago, earliest cities flourished on the bank of these rivers. So, and around 2500 years ago, city developed on the bank of Ganga and its tributaries. Okay, you can see Ganga and its tributary in map. So people also used to travel. So why can you think why they used to travel? There could be many reasons. So the first reason is to survive. They used to travel because of natural disaster. To protect themselves from natural disaster, they used to travel. Okay. So and the second is reason could be because as kingdom was developing, so people used to kings used to travel to conquer lands. मतलब ये तो आज तो नहीं होता ना, पहले होता था ऐसा कि लोग दूसरी किंगडम को हड़पना चाहते थे तो लड़ाई हुआ करती थी, तो लोग किंग जो थे वो ट्रैवल किया करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया करते थे. ओके, सो द नेक्स्ट रीज़न कुड बी फॉर ट्रेडिंग. लोग सामान बेचने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया करते थे. ओके,
Even religious teachers, they also walk from village to village to give instruction and give advice what they mean. And even people used to travel for adventure also. आज भी लोग एडवेंचरस हैं, जितना पहले हुआ करते थे उतना आज भी एडवेंचरस हैं पीपल, आज भी ट्रैवल किया करते हैं. ओके, सो हैव यू एवर थॉट कि हमारे कंट्री को इंडिया या भारत ही क्यों कहा जाता है? इसके पीछे 3 रीज़न हैं. पहला रीज़न ये है कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. द सेकेंड रीज़न इज around 2500 years ago when Ganga and its tributaries developed, the cities developed around Ganga and its tributaries, Iranian and Greeks came to our country. सो जब वो आए तो उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगा, उनका बोलचाल डिफरेंट होगा. सो दे कॉल्ड आवर कंट्री एज इंडोस और हिंदोस. एंड द थर्ड इज भारत. सो भारत वर्ड कहाँ से आया? भारत वर्ड हमारे एक ओल्ड स्क्रिप्चर से आया जो कि ऋग्वेद है. तो भारत नाम ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है, उससे आया. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ फाइंडिंग द पास्ट. हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ पास्ट में? हमें कैसे पता? हमें क्या करना चाहिए पता करने के लिए? सो देयर आर वेरियस सोर्सेज थ्रू विच वी कैन फाइंड दैट व्हाट हैपेंड इन आवर पास्ट. फर्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है? सबके दिमाग में आएगा. मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है रिटन बाय हैंड. ओके, मैन्यू एक लैटिन वर्ड है और आजकल जो हम लोग ये मैनुअल बोलते हैं ये भी यहीं से आया है. तो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है एक, ये रिटन होता है विच इज़ रिटन बाय हैंड, इट इज़ अ सोर्स. तो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा कहाँ जाता था? ये लीव्स पे लिखा जाता था या फिर बार्क होता है ट्री का, उसको एक स्पेशल तरीके से उसको सजाया जाता था, उसको बर्च कहते थे. तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता था वो या तो संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में लिखा जाता था. संस्कृत तो उस टाइम में मोस्टली विद्वान लोग ही यूज़ किया करते थे. आज भी विद्वान लोग ही संस्कृत ज़्यादा यूज़ करते हैं. प्राकृत जो होता था उस टाइम का वो कॉमन लैंग्वेज था. जैसे कि हमारे यहाँ हमारा मदर टंग हिंदी है, उस टाइम प्राकृत हुआ करता था. ठीक है. सेकेंड सोर्स है इंस्क्रिप्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता है वो तुम्हारा रिटन बाय हैंड होता है और वो पाम लीव्स पे लिखते थे. तो वो बहुत सॉफ्ट हुआ करता था, उसको इंसेक्ट्स खा जाया करते थे या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाया करता था. बट ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था. ओके, सो ये इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होता था. बेसिकली ये स्टोन या मेटल या बिग क्ले पे लिखा जाता था. और ये यूज़ कौन करता था? किंग्स यूज़ किया करते थे. अगर वो कोई वॉर जीता करते थे तो वो लिखवा दिया करते थे इंस्क्रिप्शंस पे, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो और उनकी आगे आने वाली पीढ़ी उसे देख सके. ठीक है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट. तो अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म बताने जा रही हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आर्कियोलॉजी स्टडी करते हैं. हमारे पास्ट के बारे में हमें बताता कौन है? हिस्टोरियंस या तो आर्कियोलॉजिस्ट. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दे स्टडी मैन्यूस्क्रिप्ट, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन. दे एक्सप्लोर करते हैं व्हाट हैपेंड इन आवर पास्ट एंड और इवन एक्सकवेट करते हैं. एक्सकवेट मतलब वो खोद के धरती खोद के पता करते हैं कि क्या है क्या नहीं है. आज भी अगर हम पाकिस्तान चले जाते हैं तो हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हमें उसकी बहुत सारी आज भी हमें बातें नहीं पता है. तो अगर आज भी हम वहाँ जाते हैं, अगर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियंस अलाउड है वहाँ जाने के लिए, तो हम आज भी बहुत कुछ पता चल सकता है हमारे रिच सिविलाइजेशन के बारे में. ठीक है. सो आज हमने बहुत हमारे पास्ट के इम्पोर्टेंस की पढ़ाई की. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन, मतलब ये सब हुआ कब. सो दे आर बेसिकली हमने आज तक पढ़ा है AD और BC के बारे में. AD मतलब एनो डोमिनी, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट. तो BC बिफोर क्राइस्ट क्या होता है? मतलब जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको फाउंडर कौन है? जीसस क्रिस्ट. तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट को BC बोलते हैं और एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द क्राइस्ट. सो हम आज कह सकते हैं आज AD 2022 है. ठीक है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात हिस्ट्री की ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबका पास्ट इक्वल नहीं होता है. एवरी पीपल हैव डिफरेंट पास्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप.
ओके सबकी लाइफ सेम नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल आज की हम एग्जाम्पल ले लें तो अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, और हमारे पीएम है, दोनों का पास डिफरेंट है, सेम तो नहीं है. सो उस टाइम पे एक किंग का पास्ट और एक फार्मर का पास्ट, दोनों का पास डिफरेंट था. आज हम देख लें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वगैरह आज भी हम चले जाते तो वहाँ कॉमन पीपल अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, उनका सिविलाइजेशन डिफरेंट है. सो कॉमन पीपल आर नॉट अलाउड देयर. Okay, so we should keep in our mind that different people have different past. Okay, so this was all about history. So we completed the first chapter, that is what, where, how and when.